Uh, the reason for us to be here today is that we want to together, first of all, celebrate and commemorate a very historic milestone that the city of Srinagar has attained, collective, collectively attained uh, yesterday, when we have been inscribed as one of the creative cities in the Creative City Network by UNESCO in the category of folk art and culture, folk art and craft. Uh, this has been a collective effort. पहले मैं आपको Creative Cities Network के बारे में थोड़ा बताऊं. It was established in 2004 to promote cooperation between various cities around the world which have certain unique uh, cultural and artistic capabilities and are especially focusing and emphasizing on those. There are different categories in gastronomy, in heritage, as well as in arts and crafts, which we have qualified for. We are the only city in the country which has been included in the UNESCO Creative Cities Network. I want to congratulate everybody who has been involved in this. I remember how focused all of us were. I want to thank uh, Principal Secretary R&B Shri Shailendra Kumar ji, Principal Secretary Industries Shri Ranjan Thakur ji, Commissioner Srinagar Municipal Corporation for his personal efforts in this, Mr. Athar Amir Khan Sahab, Director Industries Mr. Mahmood Ahmed Shah Sahab. I want to thank uh, Convener Intac Kashmir Salim Beg Sahab and Chief Town Planner Iftikhar Hakim Sahab and the associated teams which made this possible. I remember we've tried once, I think it was 2018 and 19, and we did not succeed. We tried again and we, Alhamdulillah, succeeded. Uh, this, I want to, just clarify that we did compete for this. We applied for this. We persevered for this. We convinced UNESCO that we deserve to be included amongst nearly 250 cities across the world in this prestigious list. मुझे याद है 2018 में पहली बार सलीम साहब मुझसे मिले और इनने मुझे बताया that we should apply to Creative Cities Network, and we did, but we didn't succeed that year. And then the next year, uh, Athar Sahab was very focused on this, and I remember uh, that he took a personal keen interest in this, and we again involved the Ministry of Human Resource Development, and SMC took a primary role in this. So, as the urban local body of Srinagar, I think this is also a milestone for Srinagar Municipal Corporation. I want to congratulate and thank Intac. I want to congratulate and thank the Directorate of Industries and the Industries Department. I want to thank the Town Planning Department. I want to thank Srinagar Smart City Corporation and uh, Honorable Lieutenant Governor, especially Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji, for his support in this endeavor and for his encouragement that we should achieve this goal. I would also, on behalf of the people of Srinagar, like to thank the Honorable Prime Minister for his encouragement yesterday, for his acknowledgement yesterday, and for his keen interest in seeing a developed, holistically growing and evolving Srinagar. I am sure that our inclusion in the Creative Cities Network will pave way for the international curation and evolution of our arts and crafts. This is a big achievement and a big impetus for our local artisans, our craftsmen, and we will persevere together. We will take initiatives to ensure that Kashmiri local arts and crafts, which Srinagar is known for, Srinagar is the hub of the handicraft industry. We will all take initiatives now. Now we have attained our inclusion
into the Creative Cities Network. Our work starts now. We want to make our arts and crafts popular internationally. We want to incubate talent. We want to educate people about our arts and crafts. And an essential function of the Creative Cities Network is that there has to be cooperation between the 250 plus cities around the world. In the arts and crafts category, there are different cities around the world. We'll work with those cities. And I think, inshallah ta'ala, this is a milestone. This is one of the first milestones of this nature for Srinagar. We will attain further such milestones. Another such milestone, earlier this year was that our cleanliness rankings, as per the Swachh Sarvekshan, have gone in the top 40, top 30 in the country. I pray that we continue to work together for our city collectively. I want to congratulate the artisans and craftsmen of Srinagar city, every resident, proud resident of Srinagar. Before I ask Akhtar Saab to explain the technical details of our inclusion in the Creative Cities Network, uh, I think this is a big day for Srinagar. I also want to announce that we have decided to have a celebratory month to showcase this achievement. We will work with stakeholders, with artisans and craftsmen. There will be events, there will be collaborative initiatives, there will be showcased exhibitions over a period of uh, a month or more, which will focus on this achievement and also educate artisans and craftsmen about what this means. At every event, a number of artists and craftsmen will be honored, showcased, and highlighted for their contribution to the arts and crafts of Srinagar, because this day and this milestone predominantly and prominently belongs to them. मेहनत लगी है, चाहे वो इफ्तिखार साहब हैं, महमूद साहब की टीम है, इंटैक्ट की टीम है, या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम है। काफ़ी सालों से ये जद्दोजहद चल रही थी एंड फाइनली वी हैव बीन एबल टू मेक इट टू द लिस्ट दिस ईयर। ये प्राउड अचीवमेंट है कलेक्टिवली, पूरे शहर के लिए, सभी लोगों के लिए हु हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। इसमें मैं दो तीन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसका एक प्रोसेस क्या रहता है। किसी भी शहर का जो म्यूनसिपल बॉडी होता है वो एलिजिबल होती है इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए। एक डॉजियर बनाया जाता है, अपनी अपनी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इस जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसकी 7 कैटेगरीज हैं। उसमें एक आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, एक फिल्म है, एक गैस्ट्रोनॉमी है, इस तरह से एक डिज़ाइन है, एक लिटरेचर है, एक मीडिया आर्ट्स है। तो टोटल 7 कैटेगरीज हैं और अपने अपने जिस सिटी को लगता है कि उनका स्ट्रेंथ उनका किसी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में है, उस कैटेगरी के हिसाब से वो अप्लाई करते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए एक बेहतरीन एक डॉजियर की ज़रूरत होती है, जिस डॉजियर को तैयार करने के लिए सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स दैट वी हैव हियर, इंटैक्ट की पूरी टीम, हैंडीक्राफ्ट्स की जो है महमूद साहब के साथ में जो हैंडीक्राफ्ट्स की टीम है, या इफ्तिखार साहब व्हेन ही वाज वर्किंग विद जेके एरा, तब से कंसेप्चुलाइज हुआ था। वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी इसमें काफ़ी हद तक उस डॉजियर को कंसेप्चुलाइज उसको करने में मदद की है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट डॉजियर केप्ट ऑन गेटिंग बेटर और उस फाइनली उस शेप में तैयार हो गया विच वाज एक्सेप्टेड बाय द यूनेस्को। इसके साथ साथ इसमें जो सिलेक्शन के लिए इट ऑल्सो नीड्स एंडोर्समेंट्स। सबसे पहले जो सिटी के मेयर होते हैं उनकी तरफ से इसमें एंडोर्समेंट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इट स्टार्ट फ्रॉम देयर। इसके साथ साथ एक भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, दे हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इनकू, इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को। ये एक संस्था है, ये कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कोऑर्डिनेट करता है यूनेस्को सेक्रेटेरिएट के साथ। सो फॉर्चुनेटली दिस ईयर जब श्रीनगर सिटी की एप्लीकेशन गई, इट वाज एंडोर्स्ड बाय इनको। इनफैक्ट 2 सिटीज़ का यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंडोर्समेंट गया था। वन वाज श्रीनगर फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट और ग्वालियर फॉर म्यूजिक। ये 2 सिटीज़ का नॉमिनेशन इंडिया से गया टू यूनेस्को सेक्रेटेरिएट एंड यूनेस्को हैज़ एक्सेप्टेड ओनली श्रीनगर्स नॉमिनेशन फॉर इंक्लूजन इन दिस प्रेस्टिजियस लिस्ट। अब जो
the actual work actually starts from after this inclusion. जब इंक्लूजन के लिए कोई भी सिटी अप्लाई करती है, इट कमिट्स लॉट ऑफ थिंग्स टू इट. काफ़ी सारी कमिटमेंट की जाती है कि अगर हम क्राफ्ट्स एंड आर्ट की बात करते हैं या क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो क्रिएटिविटी को किस तरीके से शहर की डेवलपमेंट का एक सेंटर बनाया जाए. हाउ कैन क्रिएटिविटी बी मेड सेंट्रल टू द अर्बन डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी. श्रीनगर जहाँ का हमारा मेन जो इकोनॉमी देखें, it's not an industrial town, it's more dependent on tourism, it's more dependent on handicrafts, it's more dependent on these cultural aspects. ये बाय डिफॉल्ट शहर के एक सेंट्रल हमारी एक्टिविटी के सेंटर में आर्ट्स एंड कल्चर है, लेकिन इसको किस तरीके से हम और बढ़ावा दें, हाउ डू वी प्रमोट इट फर्दर, that's the journey which is going to start from here. ये प्लेटफॉर्म हमारे शहर को एक अपॉर्चुनिटी देता है दूसरे बाकी जो विभिन्न 249 सिटीज़ हैं या 250 सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने में, वो किस उनके साथ मार्केट्स के हिसाब से शेयर पार्टनरशिप करने के लिए. सो उस चीज़ को भी आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी स्टिक टुगेदर एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर हाउ डू वी हार्नेस दिस फॉर द बेटरमेंट एंड द बेनिफिट. तो हमारा शहर एक खास है, हमारा काफ़ी जो है क्राफ्ट बास्केट काफ़ी डाइवर्स है और 50,000 से ज़्यादा लोग जो है आर्टिसंस क्राफ्ट्स के साथ जुड़े हैं. और जो हमारे प्रैक्टाइजिंग आर्ट्स है 10-12 आर्ट्स है जो श्रीनगर सिटी में प्रैक्टाइज किए जाते हैं. और यहाँ पे जब इतनी डाइवर्सिटी शायद इतनी छोटी सी जगह पे दुनिया भर में अगर देखें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी छोटी सी जगह में आप नहीं पाएंगे. तो एक रीज़न ये भी बना कि इस एनलिस्टिंग को हासिल करने में हमारी जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ कोई अप्रैल मई के महीने में सलीम साहब के साथ, तो वहाँ पे हमको इस डोजियर में कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ी कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा रोड मैप क्या है. तो मुझे खुशी इस बात की है कि लास्ट ईयर हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी आई थी और उस पॉलिसी ने हमको एक रोड मैप दिया है कि किस डायरेक्शन में जाना है. तो काफ़ी उस पॉलिसी की वसातत से काफ़ी स्कीमें आई जो हमने इम्प्लीमेंट की है. जैसे हमारा एक स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें हम आर्टिसंस को ऑर्गेनाइज करते हैं सोसाइटीज़ में. और हर साल 2000 सोसाइटीज़ हमको बनानी है और इस साल भी जो है कोई 2-2,500 सोसाइटीज़ बनी और कोई 10 करोड़ का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जाता है हर साल. उसके अलावा आर्टिसन क्रेडिट कार्ड पे काम हुआ, वहाँ पे भी जो है अनाउंसमेंट हुई. फिर हमारी एक और स्कीम आई कारखानदार स्कीम, जिसमें हमारे जो नेशनल आर्टिसंस है या नेशनल अवार्डीज़ है, स्टेट अवार्डीज़ है, उनके कारखानों को नोटिफाई करके उनमें जो लोग सीखने आए और जो सिखाते हैं दोनों को स्टाइपेंड मिलता है. ये एक स्टेप था कि हाउ स्किल अपग्रेडेशन कैन हैपन. उसके अलावा एक और हमने देखा कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक 10% का एक्सपोर्ट इंसेंटिव आया. तो काफ़ी जो है फाइनेंशियल ये जो है पैसा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आया. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो क्राफ्ट सिटी में हमें नॉमिनेशन हासिल करने में मदद मिला, वो है मार्केटिंग. तो आने वाले दिनों में हम बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जैसे हमारा अभी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आ रहा है 14 नवंबर को, फिर उसके बाद सूरजकुंड में क्राफ्ट मेला हो रहा है और बैक टू बैक जो है एग्जीबिशंस हो रहे हैं. तो इसमें जो है काफ़ी हमें मदद मिलेगी कि आर्टिसंस को हम कनेक्ट करें विद बायर्स. अल्टीमेटली जो हमारी कोशिश है आर्टिसन को कनेक्ट करना विद द बायर्स. और जो है आज तक शायद ये जो आर्टिसन है मार्जिनलाइज हुआ है, उसकी एक वजह है जो है मशीन इंटरवेंशन हुआ. तो मशीन इंटरवेंशन को नेगेट करने के लिए हमने एक मुफस्सल कैंपेन लॉन्च की जिसे GI के नाम से जाना जाता है. जोग्राफिकल इंडिकेटर 7 क्राफ्ट्स में हमारे GI है और जिसमें पश्मीना है, सोजनी है, कानी है, फिर पेपरमैशे है, वॉलनट है, खत्मबंद है और कारपेट है. तो इसमें हम QR कोड ला रहे हैं. एक कैंपेन हमने चला